Hello students, today I will explain chapter 3rd linear equation in two variable, and that will be the lecture 4 and exercise 3C. That is the given the method of cross multiplication, or in last year that is deleted in CBSE board, but in this year it may becomes. Understood? So I am explaining the method of cross multiplication. Okay, how you will solve this? So first of all, you know, two linear equation there will be given. दो linear equation दिया रहेगा. ओके, जैसे पहला linear equation ax plus b1 y plus c1 is equal to 0. That is the first equation. Second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, in these both equation, here has given the x, y and 1 is for the constant number c1 and c2. Okay. So in this method, you will write here the diagram b1 b2 c1 c2 and a1 a2 and b1 b2. In this way, first of all you have to remember, पहले तो ये डायग्राम बना लेना है x y and 1 in this way. ओके, दोनों किनारे साइड पर दिमाग में रखना है कि b1 और b2 दोनों किनारों पर रहेंगे. ओके, फर्स्ट एंड लास्ट in between the first you will start c1 c2 and just after a1 a2. That you have to keep in your mind. After that you will do b1 का मल्टीप्लाई c2 से होगा और b2 की मल्टीप्लाई c1 से. अंडरस्टूड? तो इन दिस वे b1 इंटू c2 यानी b1 c2 माइनस b2 c1 इन दिस वे, यानी b1 c2 minus b2 c1, that I have written. Okay, that is the x upon this. Now here in place of this you will write here is equal to, now you write here y upon, so same here also c1 into a2 minus c2 into a1, just you will write down, yani y upon c1 a2 minus c2 a1. Clear? Now you come at the 1 here and just downside will be is equal to, इसके ठीक नीचे यहाँ equal to लिखेंगे और यहाँ पे 1 upon same way a1 into b2 minus a2 into b1. Here also I have written a1 into b2 and minus a2 into b1. So in this way you will get x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 upon a1 b2 minus a2 b1. Okay, by this diagram you can write this. Understood? And now 1 upon this will be common for both. X upon this is equal to 1 upon this. एक साथ रख करके सॉल्व करेंगे. अंडरस्टूड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के अनुसार तो सॉल्व करने के बाद हम पाएंगे x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 a2 a1 b2 minus a2 b1 with the help of this is equal to this. इसके हेल्प से फिर एक बार y is equal to y upon this is equal to 1 upon this, इसको लेकर दूसरी बार सॉल्व करेंगे तो then you will get y is equal to c1 a2 minus c2 a1 upon
A1 B2 minus A2 B1. Dear students, sometimes I have seen in the examinations some students will hurriedly do mistakes. Understood? So no need to doing with that process. इस प्रोसेस से करने की बजाय सबसे आसान प्रोसेस है इसे रिमेंबर कर लेना। अंडरस्टूड? इसका मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इसे रिमेंबर कर लेंगे। अंडरस्टूड? और ये रिमेंबर रहेगा तो इतना प्रोसेस टाइम भी हमारा सेव होगा और मिस्टेक होने की चांस भी नहीं है। तो इसे हम बता रहे हैं कि कैसे तुम रिमेंबर करोगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू b1 c2। अंडरस्टूड? यानी अपने माइंड में फीड कर लो कि ऊपर जो भी है वो BC हैज गिवन एंड डाउनवर्ड AB एंड AB गिवन। क्लियर? तो इतना दिमाग में जब रखना। अभी पहले एक बार समझ लो। तो हेयर यू विल राइट, जैसे BC है, अब BC का कोई भी प्रोसेस रख सकते हो अपने याद करने के लिए। जैसे BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट विल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, कोई भी एक अज्यूम कर लेंगे। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट याद रख लो और यहाँ भी BC लिखो। अब इसे मानना 12 और इसे मानना 21, यानी 12 का ठीक उल्टा 21। अंडरस्टूड? एंड डाउनवर्ड आल्सो AB। ओके, अब AB एंड हेयर आल्सो AB। ये दिमाग में रखना कि डाउनवर्ड में AB होगा, दोनों में होगा, Y वाले में भी और X वाले में भी। डिनोमिनेटर के प्लेस पर AB माइनस AB होगा, Y में भी डिनोमिनेटर की जगह AB माइनस AB। अब ये डिसाइड करना है कि A1 B2 माइनस A2 B1। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम सीधे मान लेंगे AB 12, यहाँ भी जैसे BC 12 ऊपर हुआ है और यहाँ पे BC 21, ठीक इसका उल्टा। सेम उसी तरह से यहाँ भी हम भी मान लेंगे AB माइनस AB। अब AB हमारा 12 है और ये दूसरा जो सेकेंड AB होगा वो 21 होगा। ये दिमाग में रख करके हम सीधे इसे फार्मूला सीधे लिख सकते हैं। तो अभी हमने बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द BC माइनस BC, क्लियर, अपॉन डाउनवर्ड AB माइनस AB। ओके, तो मैं कहा हूं कि पहले याद रखना 12 एंड देन 21। तो 12 का मतलब B1 C2 और 21 का मतलब B2 C1। क्लियर? डाउनवर्ड AB, अब AB में भी ये 12 है और ये 21 है। क्लियर? In this way you can write the formula directly, no need to drawing by that process. Okay? इस प्रोसेस से करने में अधिक से अधिक समय भी लगेगा और मिस्टेक होने की भी संभावना है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में हमेशा हरिडली रहता है, जल्दीबाजी रहता है। नाउ से y इज इक्वल टू, क्लियर? अब y में क्या करना है? y को याद रखना है कि y इज इक्वल टू जो ऊपर होगा, जैसे यहाँ पे अभी वो हमने दिमाग में रखा था BC बिफोर क्राइस्ट, एक रिमेम्बरिंग करने के लिए, याद रखने के लिए हमने सोच लिया कि BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ठीक उसी प्रकार से y इज इक्वल टू हम यहाँ पे याद रखेंगे CA, दिमाग में रख लेंगे। C माने चार्टेड, A माने अकाउंटेंट, यानी CA चार्टेड अकाउंटेंट। तो इन दिस वे हम यहाँ पे जो लिखेंगे दैट इज CA माइनस CA।
क्लियर, अपान डाउनवर्ड यानी डिनोमिनेटर की जगह सेम यही होगा जो एक्स वाले में होगा, यानी ए बी माइनस ए बी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन दिस वे अब सी ए यहां भी 12 होगा, 12 यानी 1 2 यानी C1 A2 माइनस यहाँ अब ठीक इसका उल्टा 12 का उल्टा 21, याद रखना है 21, और 21 का सीधे हो जाएगा C2A1, C2A1। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड डाउनवर्ड आल्सो सेम दैट वे, यहाँ भी क्या था AB 12 और ठीक उल्टा 21, यानी 12 मीन्स 1 2, 21 मीन्स 2 1। So in this way you will get the two formula to find x and y from the two linear equation। अब दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो सीधे हम इस फार्मूले में रख करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, किस कंडीशन में? जब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अंडरस्टूड? जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो उस केस में क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड? इसको जरूर ध्यान रखना है कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, सो इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हमें इस फार्मूले के अंतर्गत रख करके x और y की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? यू विल टेक स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल सॉल्व द सम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज। ओके, okay student, now listen the first question here given x plus 2y plus 1 is equal to 0 and 2x minus 3y minus 12 is equal to 0 also given। Clear? So that is the first equation and that is the second equation given। Clear? So here that is in the form of a1x plus b2y b1y plus c1 is equal to 0। Clear students? You will compare with this and that will compare with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। Clear? तो नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर कंपेयरिंग x का कोफिशिएंट यहाँ पे हिडन है 1, तो यानी a1 की वैल्यू 1, देयरफॉर a1 is equal to 1, a2 is equal to 2, now b2 is equal to -3, पहले b1 का निकाल लेंगे। b1 is equal to 2 and b2 is equal to -3, b2 is equal to -3 on comparing। जैसे कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, b2 है, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ y -3, सो वी राइट हियर
B2 equal to -3. Okay, now C1 is equal to 1 and C2 is equal to -12. Clear students? In this way separately we will finding after, no need to make the diagram as I have earlier explained it. Understood? यहाँ पे जो डायग्राम पहले समझाए थे उस डायग्राम्स के हेल्प से न करके हेयर दैट टेक्निक, जो ट्रिक अभी हमने बताया है उस ट्रिक के अनुसार सॉल्व करोगे, जल्दी सॉल्व होगा. ओके, अब वो ट्रिक क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे जांच करेंगे. हम यहां पे चेक करेंगे कि A1 अपान A2 और B1 अपान B2 ये दोनों बराबर है कि नहीं. तो चेक करने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे. A1 की वैल्यू 1 है, A1 की वैल्यू 1 एंड A2 की वैल्यू 2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू -3. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 क्या है? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे 1 अपान 2 इज इक्वल टू 2 अपान -3. क्या ये दोनों इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल. सो वी विल राइट दैट इज नॉट इक्वल. ये इक्वल नहीं है तो ए भी इक्वल नहीं होगा. सो इट इज यूनिक सॉल्यूशन. इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन. ओके, तो जब हमें डिसाइड कर लेंगे कि यह यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर सीधे डायरेक्टली हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? अब x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी जो हमने बताया था x और y ये दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है. अब इसकी फार्मूला जो हम डायग्राम के द्वारा निकालेंगे वो सीधे हम ट्रिक के द्वारा लर्न कर सकते हैं, ट्रिक के द्वारा लिख सकते हैं. ट्रिक था हमारा x के लिए BC और -BC अपान AB -AB. क्लियर स्टूडेंट्स? ये इतना याद रहना चाहिए कि x के लिए BC -BC और y के लिए CA -CA. y के लिए CA -CA अपान AB -AB. ये दोनों में कॉमन होगा. x के डिनोमिनेटर में जो होगा वही y के भी डिनोमिनेटर में होगा. क्लियर? अब ट्रिक ये था कि जो पहला BC था 12 था, दैट इज 12 एंड दैट इज 21. तो 12 का मतलब B1C2 माइनस B2 एंड C1. ये टेक्निक है 12-21 का. क्लियर? इससे मिस्टेक नहीं होगा. एंड डाउनवर्ड AB -AB, इसका भी टेक्निक वही है जो यहाँ पे है 12-21. यहाँ भी 12-21, यानी 12 का मतलब 1-2 और ठीक इसका उल्टा 2-1-21. क्लियर? सीधे y is equal to also there. Here that will be 12 and it's 21. यानी ये CA 12 है और ये CA 21 है, जिसका मतलब 1 यानी C1, 2 का मतलब A2. यहाँ पे 2 और 1 है तो 2 क्या है? C2 और 1 क्या है? A1. क्लियर स्टूडेंट्स? इन दिस वे नाउ AB -AB will be same. जिसे यहाँ 12 और 21 हुआ है वैसे नीचे भी 12 और 21, जिसका अर्थ होगा A1 A2 -A2 B1. क्लियर स्टूडेंट्स? इस टेक्निक को ध्यान में रखोगे, अंडरस्टूड, देन देयर विल बी नो एनी मिस्टेक. अब प्रोसेस हमारा बच गया. सीधे इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यानी x इज इक्वल टू, अब हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे B1C2
B1 there has given 2 into C2 given minus 12. Okay, minus B2 C1, B2 given minus 3 into C1 given 1 upon A1 B2 minus A2 B1, यानी A1 B2, A1 has value given 1 into B2 minus 3 माइनस, अब सीधा हो जाएगा A2 B1, A2 यानी 2 into B1 is also given 2. Okay students, now you will solve 12 minus 12 to is minus 24 and minus 3 into 1 minus 3 and again minus से मल्टीप्लाई लगेगा, यानी ऐसे भी कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस 3 हो गया, प्लस 3 बन जा प्लस 3 अपॉन 1 into minus 3 is equal to minus 3 and minus 2 into 2 will be minus 4. Finally minus 24 में से plus 3 taken out, you will get minus 21 upon minus 3 and minus 4 when you will add then you will get minus 7. अब माइनस से माइनस में डिवाइड कर देंगे प्लस, और 7 3 जा 21 यानी प्लस 3. Understood? So in this way you will get the x is equal to 3. Clear students? In this way same also you will find the value of y. Value of y ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी फाइंड कर लेंगे. Clear students? C1 A2 C1 1 A2 2. अब सीधे 1 into 2. Clear students? माइनस C2 A1, तो C2 minus 12 into A1 is 1 given. Okay, upon A1 A2 माइनस A2 B1, सेम यही होगा जो हमने x में रखा था. तो इसमें देखने जो हैं सीधे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 3 जा minus 3 and there will be minus 7 and in this way that will be 12. 1 2 जा 2 minus into minus plus 12 upon minus 3 and minus 4 that is minus 7, यानी 14 upon minus 7, 14 upon 7 is equal to minus 2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी minus 2. Understood? और x की वैल्यू what do we get plus 3. Understood? So the answer will be x is equal to plus 3 and y is equal to minus 2. Clear students? With the help of this process you can solve all sums, no any doubt. Clear students? One more question I am doing. Question number 5. Okay. Question number 5.
Question number 5, that has given 2x plus 5y is equal to 1 given, and 2x plus 3y is equal to 3 given. Clear students? तो then we are seeing that हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x plus 5y is equal to 1 given. Okay, and downward also same. So first of all we convert it into 2x plus 5y अपॉन इज इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज कर देंगे, इट विल बी -1 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब ये किस फॉर्म में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. वो इसके फॉर्म में हो गया. क्लियर? सेम दिस आल्सो 2x प्लस 3y और 3 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, इट विल बी -3 इज इक्वल टू 0. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन दिस वे इट आल्सो बी a2x प्लस b2y माइनस c2 इज इक्वल टू 0. क्लियर? बाय द हेल्प ऑफ दिस अब इसे कंपेयर करके हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल देंगे, सेपरेट ही लेंगे, यानी सीधे हो जाएगा हमारा a1 a2. तो a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू आल्सो 2. क्लियर? नाउ b1 इज इक्वल टू 5 and b2 is equal to plus 3. Now c1 is equal to -1 and c2 is equal to, understood? Here the given c2 is equal to -3. Yes students, now that technique I have given, first of all you will check that is unique solution or not. तो unique solution चेक करने के लिए हम सीधे लिखेंगे a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. ऐसा होना चाहिए, not equal होना चाहिए. ओके, यानी a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऐसा होना चाहिए, तभी वो यूनिक सॉल्यूशन है. तो हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे. तो है a1 2 and a2 also 2 is equal to b1 given 5 and b2 given 3. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3. तो क्या स्टूडेंट्स, 2 अपॉन 2 और 5 अपॉन 3 क्या ये दोनों एक दूसरे बराबर है? नो, इट इज नॉट इक्वल. सो वी विल राइट 2 अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 3. सो इट इज unique, it is a unique solution. Unique solution. Clear students? So after deciding unique solution, just you write value of x and value of y with that formula. x is equal to, अभी हमने बोला, और y दोनों के हम यहाँ पे अलग अलग लिख दे रहे हैं. x और y की वैल्यू निकालना है. क्लियर? अब x की वैल्यू के लिए बताया था टेक्निक BC अपॉन AB, याद रखना है. BC माइनस BC
अपॉन ए बी माइनस ए बी। क्लियर? और टेक्निक ये था कि ऊपर पहला जो BC था वो 12 था और जो दूसरा BC था वो 21 था, इसी का उल्टा। तो इस प्रकार से हम फार्मूला सीधे लिख सकते हैं B1C2 एंड B2C1। ठीक उसी प्रकार से भी था हमारा 12 और 21। तो 12 का मतलब A1B2 माइनस AB का मतलब 21 का मतलब A2B1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इन Y BC, जैसे हमारे सोचे थे क्या बिफोर क्राइस्ट, जैसे X के लिए बिफोर क्राइस्ट याद रखना और Y के लिए CA यानी चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, Y के लिए CA और X के लिए BC। ओके, तो CA तुरंत याद आ जाएगा एग्जामिनेशन में, CA माइनस CA अपॉन, और जो डिनोमिनेटर होगा AB ये सेम जो X में होगा वही Y में भी होगा। ओके, तो ये तो हमेशा याद रहेगा AB माइनस AB यानी A1 B2 A2 B1, और ये भी हमारा वही है 12 और 21 का यहाँ भी टेक्निक है। तो 12 का मतलब C1 A2 माइनस C2 A1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस टेक्निक के द्वारा फार्मूला जो है हम इसे लर्न करने के बाद सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, तुम्हारा समय अधिक से अधिक सेव होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर B1 C2, B1 is 5 and C2 is -3, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम। तो B1 5 इंटू -3, फिर माइनस B2 C1, B2 is 3 and C1 is -1, 3 इंटू -1 अपॉन A1 B2, A1 2 और B2 3 यानी 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3। क्लियर? माइनस A2 B1 यानी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। इन दिस वे स्टूडेंट 5 3 जा -15 and -3 into -1 +3 upon 2 3 जा 6 and 2 5 जा -10। Finally you will get -15 में से +3 गया -12, ओके, और -10 में से +6 गया -4, तो माइनस से माइनस में डिवाइड कर देंगे प्लस, 4 3 जा 12। तो इन दिस वे दैट विल बी द आंसर। +3 value of X, same value of Y also you will find that way। Y is equal to C1 A2, C1 -1 और A2 given 2, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे -1 into 2 -2। ओके, नाउ C2 A1, C2 is -2 and A1 is 2, so 3 2 जा 6, यहाँ पे -6। क्लियर? अपॉन अब A1 B2 माइनस A2 B1 का सेम वही वैल्यू जो हमने X के लिए निकाला था, सीधे लिख देंगे 2 3 जा 6 and -5 into -10। इन दिस वे स्टूडेंट्स -2 ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 अपॉन, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द -4। फाइनली +6 में से -2 गया +4 और ये -4, हम जब इसमें डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट -1, तो y की वैल्यू आ जाएगा -1। क्लियर स्टूडेंट्स?